Good morning, students. This video is related to the tenses. Here in this video, you can see the tense chart. As we all know that we have three types of tenses, that is present tense, past tense and future tense, and each tense has four forms: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, perfect continuous tense. Similarly, in the same way, past has also four forms, that is simple present past tense, past continuous tense, past perfect tense, and then past perfect continuous tense. Then we have future tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So here you can see that I have divided this chart into two parts. Each form has been divided into two parts. First is HV, that is we can call helping verb, and second is MV, that is main verb. So first of all I will tell you about the main verbs of all the three tenses. Here you can see in all the three tenses, in each continuous form, perfect tense, perfect forms and perfect continuous form, all the main verbs are common. All have the same common verbs. Whether it is in the present continuous, whether it is past continuous or whether it is future continuous, we have verb की first form plus ing in all the three forms. In perfect tense, we can see we have third form of the verb. Whether it is present tense, whether it is past or whether it is future, we have third form of the verb. We always use third form of the verb. Then in the perfect continuous tense, you can see that here we have verb की first form plus ing. So in the present tense, we have present perfect continuous tense. We similarly use verb की first form plus ing. Similarly, in the past tense or whether it is in the future tense, we always use verb की first form plus ing. Then what is the difference in all the three tenses? The difference is created by the helping verb. In simple present tense, the helping verb which we use is do or does. In past tense, the helping verb which we used is did, and in simple future tense, the helping verb which we used is will or shall. So in all the three tenses, the helping verbs are the different. In simple present tense की helping verb होती है do और does, past की होती है did और future की होती है will और shall. सिमिलरली सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज़ किया जाता है, पास्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड फ्यूचर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और सिंपल पास्ट टेंस में अगर हमारे पास डिड लगा हुआ है तो डिड के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. देन इन कंटिन्यूस टेंस द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आर इज एम आर, पास्ट की वॉज और वर और फ्यूचर की विल बी और शैल बी. परफेक्ट टेंस के सिंपल परफेक्ट टेंस की हैज़ हैव, पास्ट की हैड और फ्यूचर की विल हैव और शैल हैव होती है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट की होती है हैड बीन और फ्यूचर की होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन. सो दिस इज़ द टेंस चार्ट. ये हमारे टेंस का चार्ट था जिसमें मैंने बताया आपको कि तीन तरह के टेंसेज होते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. और हर टेंस की चार फॉर्म्स होती है, दैट इज सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. तो प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये होती है कि इसके अंदर हम सिंस और फॉर का यूज़ भी करते हैं. सिंस इज यूज्ड, दोनों ही टेंसेज में सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है. सिंस इज यूज फॉर पर्टिकुलर टाइम. और फॉर इज यूज फॉर काउंटेबल टाइम पीरियड. जिस समय, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और जिस समय को हम गिन सकते हैं
उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इसमें सिंस ऑफ फॉर का यूज़ किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर का प्रयोग हम काउंटेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। फिर पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और मेन वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसी तरह से आप फ्यूचर की भी यहाँ देख सकते हैं, मैंने सबकी हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है। विल भी शैल भी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मेन वर्ब है। कंटिन्यूअस टेंस की परफेक्ट में विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है। विल हैव बीन शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मेन वर्ब है। इसी तरह से तीनों टेंस फॉर्म्स में कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। तो इस तरह से आपको ये टेंस चार्ट को याद करने में ईजीनेस आएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों की मेन वर्ब सेम है। पूरे टेंस चार्ट में सबकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं। सो थैंक यू।